خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور ہر قسم کی نصیحت کی چیز جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی اور خدا کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے۔ سورہ اعراف نوٹ کریں، سورہ اعراف 7:145 میں لکھا ہے، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اللہ نے خود لکھ دی، اور پھر ارشاد فرمایا اسے زور سے پکڑے رہو۔ اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ضیاء صاحب نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تورات جو ہے یا وہ تورات یا یہ بائبل کہتے ہیں، یہ اپنے مطابق جو ہے وہ بائبل کہتے ہیں، مگر یہ تورات ہے، تورات مبارکہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت مبارکہ جو انہوں نے حوالہ دیا وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف یعنی کہ 7ویں سورہ مبارکہ ہے، اور انہوں نے آیت 145 کا جو ہے ذکر کیا، مگر ہم اس کو دیکھیں گے آیت 144 سے، یعنی کہ 144 اور 145 دونوں دیکھیں گے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔ یعنی کہ یہ جو تورات تھی وہ کس پہ؟ تختیوں پہ لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے لکھی، کیسے لکھی؟ اللہ رب العزت نے لکھ کے دے دی، یہ کنفرم ہے، ہم یہ لکھ کے دی ہیں، کیسے لکھی یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اور ساتھ میں اگر ہم ایک اور آیت مبارکہ کا مزید جو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھی لکھائی جو ہے وہ تختیاں جو الواح ہیں یا جو اپنا تورات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اب اس سے بائبل استخراج کرنا یہ زیادتی ہے۔ اب مزید ہم چلتے ہیں ایک اور آیت مبارکہ کی طرف، اس کو ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ یعنی کہ 5ویں سورہ مبارکہ، اور اس کی آیت 44 یعنی کہ 44۔ بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمبردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی، یعنی کہ انبیاء سے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے یا عالم تھے یا فقیہ تھے یا بنی اسرائیل سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی، اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت ان سے چاہی گئی تھی، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنا ان سے بنی اسرائیل سے جو ہے، اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں ڈیفرنٹ ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لیا، اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اس پر اتنا کام کیا ہے کہ حفظ کرتے ہیں، حفاظ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، ان کے عطا سے جو ہے مسلمانوں کی کروڑوں کی اس وقت بھی تعداد جو ہے حفاظ قرآن کی ہے، یعنی کہ حافظ ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ ہر انداز میں قرآن پاک کی حفاظت مسلمان خود بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ رب العزت جس انداز سے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اب جو تورات تھی جس کو اللہ رب العزت نے، تورات کی تختیاں تھی اللہ رب العزت نے خود لکھ کر عطا فرمایا، وہ اس کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، مگر آپ دیکھیں گے کہ وہ تختیاں، وہ تورات وہ اب مخفوض ہے، وہ نہیں ہے۔ کوئی ایسے کام کا اٹھ کر کوئی بھی دعویٰ کر دے، جیسے کرسچنز میں اور ان لوگوں میں دعوے ہوتے رہتے ہیں، اور دعوے تو یہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو ضیاء صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کرسچن جو ہیں وہ دعوے کرنے میں کتنے، میں بھی 28 سال کی عمر تک کرسچن رہا ہوں تو مجھے تو ان کا پتہ ہے کہ دعوے کردہ کرسچنوں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو اب کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے تو وہ الگ بات ہے کہ جی فلاں عجائب گھر میں، فلاں میوزیم میں وہ الواح موجود ہیں، وہ ان کی اپنی ٹینشن ہے، ان کی سردردی ہے، مگر یہ الواح ہے نہیں۔
अब हम देखते हैं कि यही वाकया जो है थोड़ा बहुत फर्क से, वो है खरूज बाब 32 में, खरूज बाब 32 में। यानी कि ये वाकया जो है ये आपको बाइबल में, ये जो मौजूदा बाइबल है इसमें भी मिलेगा, मगर ये कुछ और अंदाज में है। इसको हम देखेंगे खरूज बाब 32 और आयत 15 ता 19। और मूसा ने शहादत की दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहे इधर से उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, यह आवाज ना तो फतेहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाच देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। यह अंदाजा करें कि अब एक नबी है, एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डायरेक्ट कलाम फरमाते हैं, या उनको ये फजीलत अता फरमाई गई कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट कलाम अता करता है। वो इतने ही गुस्से में आपे से बाहर हो गए कि एक ऐसी यूनिक चीज, ऐसी चीज जो पहली बार तारीख में, हिस्ट्री में, इंसानी पैदाइश में पहली बार ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो लिखी हुई, खुद अपने हाथ से लिखी हुई, या जैसे भी, यानी कि ये अब बाइबल के मुताबिक वो अपने हाथ से लिखी हैं या उंगली से लिखी हैं, वो बाइबल के मुताबिक उंगली से लिखी हैं। तो वो जो लोहे लेकर आ रहा है, और क्या कहते हैं, वो बनी इसराइल की वो जो कारगुजारी थी, उन्होंने बछड़ा बनाकर पूजा शुरू की हुई थी, उन पर गुस्सा उतारने की बजाय, उनको कुछ कहने के बजाय लोहे ही तोड़ दी। वो तख्तियां हैं वो तोड़ के फेंक दी। ये क्या कुछ समझ में आती है? फिर अब यही कुछ नहीं है। फिर अब मजीद हम देखते हैं कि उस मूसा के बारे में और क्या है। इसको आप देखेंगे गिनती, और इसका 20 बाब और इसकी 12 आयत। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, क्योंकि तुमने मेरा यकीन किया, कि यकीन यहाँ पे लफ्ज़ है यकीन ना किया, क्योंकि जितने भी तराजम है यकीन ना किया, क्योंकि अगला जो हम जुज़ पढ़ेंगे तो उससे यही होगा कि वो ये समझ आ जाएगी, यहाँ इनकी एडिटिंग की या टाइपिंग की गलती है। मेरा यकीन ना किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। ये है अब हजरत मूसा का, या मूसा के बारे में, कि एक तो उन्होंने जो है अलवा तोड़ दी, तख्तियां तोड़ दी जो जिनको खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दिया हुआ था। फिर तख्तियां तोड़ने के साथ साथ ये भी आगे ये भी आ रहा है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की, या खुदा की बाइबल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो बाइबल के यहोवा की तकदीस ना की। अब मैं ज़िया साहब से एक सवाल करना चाहूंगा इसी बारे में। ज़िया साहब, क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे कि जब यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में आता है तो किस अंदाज में है, कितना साफ सुथरा शफाफ है, और जब बाइबल में आता है तो वो आपके सामने ही है, वो आपके सामने ही है कि क्या किस अंदाज में है। और सिर्फ मजीद यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, मैंने आज जो आयत मुबारका तलावत की है कि वो जो तुरात में क्या था, नूर और हदायत थी। तो इसी हवाले से, यानी कि ये हजरत मूसा का जिक्र है, तो उसी हवाले से हम इस पर बात देखेंगे। तो तुरात की जो सबसे पहली किताब, जो बाइबल के मुताबिक जो तुरात की, या बाइबल में जो 5 किताबों को जिनको तुरात कहा जाता है, उसमें हम सबसे पहली किताब में कुछ अंबिया कराम के बारे में जो सिर्फ 6-7 पॉइंट में बयान करूंगा, तो वो भी मैं हवाला जात नहीं दूंगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। मैं हवाला जात में दूंगा और बाकी मैं पढ़ूंगा नहीं। तो आप ये देख लें कि वो जो चीजें हैं, अब जो कुरान पाक ने जिस तुरात का कहा उसमें है हदायत और नूर, और ये जो मैं हवाला जात दे रहा हूं इससे अब क्या लेंगे, इसको आप देखेंगे तकवीन बाब 2 और आयत 25 में। अगर आप देखें, यानी कि पैदाइश की किताब, इसको अब मैंने वो इसमें कातलोग में से ली है, तो तकवीन बाब 2 आयत 25, आदम व हवा बागे अदन में नंगे रहते थे। फिर आप देखेंगे तकवीन बाब 9 आयत 18 ता 23,
नूह का शराब पीकर बदमस्त नंगा होना। फिर आप देखें तकवीन बाब 12 आयत 10 ta 15, इब्राहिम का अपनी बीवी को फिरौन के पास भेजना। फिर तकवीन बाब 20 आयत 1 और 2, इब्राहिम का अपनी बीवी को अबीमेलेक बादशाह के पास भेजना। फिर आप देखें तकवीन बाब 35 आयत 22, रऊबीन ने यानी कि याकूब के बेटे रऊबीन ने जो यहूदा का या बनी इसराइल का जो समझ लें कि कबीला जिसके नाम पर चलता है, या बनी इसराइल का याकूब का बेटा रऊबीन ने अपनी मां से जिना किया। फिर आप देखें तकवीन बाब 11 पूरा पढ़े, लूत की दोनों बेटियां अपने हकीकी बाप लूत से हामला हुई। फिर आप तकवीन बाब 38 यानी कि 38 पढ़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि यहूदा ने अपनी हकीकी बहू को हामला किया। हकीकी बहू को क्या किया? हामला किया। अब कुरान पाक ने जिस तुराज ज़बूर या साहिफ अंबिया और अंजील का बयान किया है, उनमें हदायत और नूर है। और ये जो मैंने सिर्फ 7 हवाले एक किताब में से, सिर्फ बाइबल की एक किताब यानी कि पहली किताब पैदाइश या तकवीन, उसमें से आपके सामने पेश कर दिए। मूसा के बारे में भी आपने देख लिया, ये भी आपने देख लिया। अब ये 7 हवाले, अब ये जो मैंने आपके सामने हवाले बयान किए, ये क्या हदायत और नूर है? हदायत और नूर है। देखें, अच्छी अच्छी अखलाकी बातें कर देना, लिख देना, वो एक अलग बात होती है। लोग मुतासर होते हैं अल्लाह से या अल्लाह वालों के इमाल, अल्लाह वालों के यानी कि अल्लाह के बंदों के इमाल से। जब आप अंबिया को ऐसे इमाल करने वाला बताएंगे कि इमाल यानी कि उनके अमल, उनके प्रैक्टिकल लाइफ ये थी, तो कौन सा बंदा है जो हदायत और नूर पा जाएगा? है कोई ऐसा बंदा? सिर्फ ये तो मैंने पुराना अहदनामा में से कर दी। अब कोई ये ना कह दे कि जी पुराने अहदनामे में ऐसा मामला हो गया। तो नए अहदनामे में जो सबसे बड़ी मारूफ नए अहदनामे की शख्सियत है, और मैं कहता हूं कि ये सबसे मजलूम शख्सियत है नए अहदनामे की या क्रिश्चियनिटी की, जो है वो सबसे मजलूम शख्सियत में इसे गर्दानता हूं, वो है यस्सु। अगर हम यस्सु को देखें तो इसका मत्ती बाब 1 और आयत 16, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यूसुफ पैदा हुआ, जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। फिर अगर आप यही चीज लूका बाब 3 और आयत 23 में देखें, जब यस्सु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का। जबकि बाइबल जगह जगह बताती है कि जो यस्सु है वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ। यस्सु वो है कुंवारी से पैदा हुआ। मगर दो यानी कि बाइबलों में, 2 अनाजील में, मत्ती में और लूका में, यस्सु का पूरा नसबनामा बाप की तरफ से आया, और बाप से भी ऐसे कि 2 अलग अलग नसबनामे, एक यूसुफ बिन याकूब से है, यूसुफ बिन याकूब से, और दूसरा यूसुफ बिन एली या यूसुफ बिन आली से है। अब आप खुद फैसला करें कि इसके बाद इससे क्या साबित होगा। और फिर मैं जो कहता हूं कि यस्सु जो है वह मजलूम तरीन शख्सियत है, ऐसी शख्सियत जो एक पैदा हुआ इंसान पैदा हुआ, जिसको ये भर चढ़कर हर यानी कि हर क्रिश्चियन आपको इसी अमल में जुटा हुआ नजर आएगा कि वो उसे खुदा बनाने के चक्कर में होगा, कि साबित करने की कोशिश करेगा कि बस यस्सु खुदा है। तो इसको आप देखें, गिलतियों 3 बाब और 13 आयत, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब अगर फिर भी कहें कि यानी कि तुरात और ज़बूर में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि नूर और हदायत थी, उसके बावजूद आप कहें और दावा करें कि यही जो बाइबल आप लिए फिर रहे हैं, जिया साहब मैं आपसे भी मुखातब हूँ और तमाम क्रिश्चियनिटी से भी, इसमें हदायत और नूर है। तो मैंने ये जो 9 हवाले दे दिए, आप देख लें कि ये क्या हदायत और नूर है। अखलाकी तरबियत आप देखें हिंदुओं की किताबों में, बुत परस्तों मुशरकों की किताबों में, या जितने भी बेदीन लोग हैं जिनको आप भी काफिर कहते हैं, हम भी काफिर कहते हैं, आप भी काफिर कहते हैं, हम भी काफिर कहते हैं, यानी कि वो जो आग की प्रस्तश करते हैं, अजराम फलकी के प्रस्तश करने वाले, अखलाकी बातें उनमें भी मिल जाएंगी। मगर ऐसी चीजें जो आप अवाम के सामने या लोगों के सामने पेश की जाएंगी, वो क्या हदायत और नूर होगा? ऐसा कुछ मामला है। देखें, मैं कोई जिद में नहीं पड़ा हुआ। आखिरत की फिक्र हर इंसान को करनी चाहिए, अपनी आखिरत की फिक्र हर इंसान को करनी चाहिए। मैं इस बात में 100% हूं कि इंसान को कभी भी दीन के मामले में, मजहब के मामले में
जज्बाती होकर जिद्दी नहीं होना चाहिए। सारी उम्र रिसर्च करते रहो, तहकीक करते रहो, पढ़ते रहो इस मामले में। देखिए बात यह है कि हम अगर अपना यहाँ पर दुनिया में ही एक कच्ची बस्ती में 3 मरले का घर, 3 मरले का मामूली घर बनाने की अगर कोशिश करते हैं कच्ची बस्ती में, जहां पर 5,000 रुपये मरला मिल जाए, मैं अपने पंजाब के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यहाँ कराची के हिसाब से 40 गज है, तो 40 गज किसी झोंपड़पट्टी में अगर आप देखें तो इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है बनाने में। एक काम मेरे जैसे इंसान को पूरी जिंदगी वो 40 घर का घर उसका मुकम्मल नहीं होता। और हम ख्वाहिश करते हैं कि हम मरने के बाद हम जो है वो बहुत बड़े बड़े महलों के जन्नत में, हम मुसलमान एज ए महलों की बात करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में भी जो मकान है वो यीशु ने मकानों का जिक्र किया है, तो वो कि मैं बड़े मकान हैं, तो वो मकान हासिल करने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो, वो आप जन्नत के हसूल के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो। सिर्फ ये जिद नहीं चलेगी। कोशिश करें, मेहनत करें कि वाकई हम जिस मजहब पर, जिस मसलक पर हैं वो हक है। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने 28 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आज तक रिसर्च करता हूं, तहकीक करता हूं और बड़ा ही तनकीदी अंदाज में अभी तक इस्लाम का मुताला जो है मेरे पीछे आप कुतुब देखते हैं। तो फिर मजे की बात यह है कि अपना जो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम लोग हैं उनका जवाब भी देता हूं। बड़े यानी कि जो बंदा इस अंदाज में काम कर रहा होता है उसको वो बड़े तनकीदी अंदाज में हर चीज को देखता है। तो मैं आज भी तनकीदी अंदाज में इस्लाम को पढ़ता हूं और मेरे सामने जो हवालाजात कोई भी किसी मजहब मिल्लत से आते हैं मैं सबसे पहले उसी को देखता हूं। तो मैं आज भी इस पर यानी कि कायल हूं कि आप अपने दीन को, अपने मजहब को जिद ना करें। जिद करने से कुछ नहीं मिलेगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, जिद करने से, बेतुकी बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ अपनी आकबत का फिक्र करें। ज़िया साहब अगर आप ये चीजें समझाना चाहें, मेरा स्काइप एड्रेस और मोबाइल नंबर भी चल रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई वीडियो डालना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप कोई वीडियो डाल दें। मेरे तमाम सवालों के जवाब मैंने ये जितने भी यानी कि सवालात किए तो आप जवाब दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4वां बाब उसकी 4थी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है।